Hello everyone. Recently, USA offered the $12 million financial package to Greenland to open its consulate after 7 decades. 1942 के बाद यूएसए ने अपना कॉन्सुलेट ग्रीनलैंड में बंद कर दिया था और ये यूएसए का मूव जो है दैट इज क्रिएटेड एंगर इन दी ग्रीनलैंड। तो आज हम इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे कि 7 डिकेड के बाद why USA is opening its consulate in Greenland, why Denmark has reacted so aggressively to the proposal made by the USA. So in this current affairs series, we are going to discuss first news analysis, second geostrategic importance of Greenland, third why USA is interested in the Greenland, fourth basic geographical fact regarding the Greenland, and at the end I am going to discuss few practice questions. So without any further delay, let's begin. Now we analyze the news. This is not the first time Trump is interested in the Greenland. In fact, you will find out in August 2019, Trump made the proposal for the purchase of Greenland from the Denmark, which obviously Denmark refused. Even the recent proposal of $12 million financial package to Greenland, you will find out the Kim Kielsen, the Prime Minister of Greenland, he has given his statement that our country is not for sale, but we are open for the business. That clearly highlight the angers of the Denmark to the proposal of United States. Now the question arises why the USA or Trump is interested in the Greenland. For that we have to understand the geostrategic location of the Greenland first. If you see Greenland, it is surrounded by the Arctic Ocean and the Atlantic Ocean. So all of you know, due to the climate change, the Arctic Oceans are melting और उसके नीचे जो बहुत सारे resources है like oil, gas and rare earth material which is very important, अब वो ऊपर आ रहे हैं. So obviously US is interested in all these material. So the first reason is the vast resources that is available under the Greenland. Now secondly, you will find out now Arctic oceans are melting as we have discussed. So the resources under the Arctic ocean, they are coming to the fore. अब रसिया ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो आर्कटिक ओशन में जो रिसोर्सेस है वो रसिया के हाथ में जाए. यूएसए रसिया की इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहता है. उसके लिए ट्रंप या यूएसए को लगता है कि द ग्रीनलैंड is going to be one of the good place to counter the foreign policy of the Russia. Moreover, चाइना ने भी अपना जो इन्फ्लुएंस है आर्कटिक ओशन में काफी बढ़ा दिया है. चाइना ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है इस रीजन में. तो बेसिकली ग्रीनलैंड के पीछे यू विल फाइंड आउट एक ये भी यूएसए का मोटिव है कि टू काउंटर द एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ द रशिया एज वेल एज चाइना. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अगर मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस कि ग्रीनलैंड इज बिटवीन द आर्कटिक एंड द अटलांटिक. सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल of resources in and around Greenland. So right now all of you know because of the COVID-19 there is a huge differences between the China and the USA. Now USA चाहता है कि जो उसका डिपेंडेंस है वो चाइना पे कम हो और एक सबसे बड़ा जो डिपेंडेंस है वो है रेयर अर्थ मटेरियल. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, यू रिक्वायर द रेयर अर्थ मटेरियल. अगर हम लोग बात करें चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल. अप्रोक्सीमेटली 90% जो वर्ल्ड के रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं दैट इज सप्लाइड बाय दी चाइना. सो यूएसए इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए जो वो प्रोड्यूस करता है उसके लिए चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल पे वो डिपेंडेंट है. नाउ जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्रीनलैंड के आसपास का जो एरिया है उसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है रेयर अर्थ मटेरियल का. सो यू विल फाइंड आउट अगर ऐसा होता है तो यूएसए का जो रिलायंस है वो चाइना पे काफी कम हो जाएगा एज पर दी रेयर अर्थ मटेरियल गोज. सो दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई यूएसए इज इंटरेस्टेड इन दी ग्रीनलैंड. नाउ किसी भी देश के कंट्री को खरीदना या उसकी टेरिटरी को खरीदना ये काफी रेयर देखा जाता है. बट अगर हम लोग बात करें कि यूएसए के इतिहास में ये ऐसा पहली बार नहीं होने जा रहा है. इसके पहले भी अगर हम देखें तो यूएसए के 2 प्रेसिडेंट ने ये ऑलरेडी कुछ टेरिटरी को परचेस किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट जेफरसन, he acquired the Louisiana from French in 1802.
1903. Then we have President Johnson. He acquired the Alaska from Russia in the year 1867. Now third reason for this is political. अगर हम लोग बात करें कोविड 19 की वजह से यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 50,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि ट्रंप ने काफी डिले किया फॉर लॉकडाउन। सो इसकी वजह से ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी डिक्लाइन हुई है। बट अगर सपोज Trump is successful in acquiring the Greenland, then obviously he will be the third president in the USA to do so. इससे ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी एंड मोर ओवर इलेक्शन, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज जस्ट अराउंड दी corner. Now the geographical fact of the Greenland is very important for this year. There is a number of news that happen in around the Greenland. So obviously Greenland, for geographical point of view, this is certainly very important topic. You will find out India was re-elected as a observer for the Arctic Council, which is around the Greenland. Secondly, you will find out there is a Eastern Economic Forum जिसको पुतिन ने organize किया था and this is for the Arctic region. It was a very mega event. In fact, our honorable Prime Minister participated into that event and in fact India ने यहाँ पे एक नई policy launch की थी Far East Policy. So for this year the area around the Greenland and Greenland is certainly very important. Now अगर मैं पहले फैक्ट की बात करूँ तो Greenland is a continental island. Now all of you know island can be divided into the three category. First is the continental island, second is the volcanic island and third is the coral island. So first fact you have to remember, Greenland is a continental island. Now second important fact, Greenland is the world's largest island. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज बिटवीन द आर्कटिक एंड द अटलांटिक ओशन, जो हमने पीछे मैप में देखा है. नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन ग्रीनलैंड इज ऑटोनॉमस बट ऑब्वियसली इट इज अंडर द टेरिटरी ऑफ डेनमार्क. यहाँ पे एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट है एंड दे हैव देयर ओन पार्लियामेंट. सो दे आर ऑटोनॉमस बट ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ द डेनमार्क. नाउ अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो ऑल ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो भी ग्लेशियर्स है अराउंड द ग्रीनलैंड और आर्कटिक में वो मेल्ट हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पोटेंशियल ऑयल एंड गैसेस यहाँ पे देखने को मिलता है इनफ्लैक्ट इंक्लूडिंग द रेयर अर्थ मटेरियल्स, ये अब ऊपर आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ यू नो कि सब देश जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज रिसोर्सेज एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि यूएसए वांट टू परचेज दी ग्रीनलैंड. ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूएसए का ऑलरेडी थुले में ग्रीनलैंड में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज अ थुले और यहाँ पे उनका एयरफोर्स बेस है. तो यू कैन सी देयर इज अ मैप. इसके अलावा थोड़ा सा आप फॉर एग्जांपल देयर इज अ हेमेल ग्लेशियर दैट इज वेरी पॉपुलर. सो आप कुछ लोकेशंस के बारे में देख लो क्योंकि ये जो लोकेशन है इन एंड आउट आर्कटिक सी एंड द ग्रीनलैंड दैट इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी. ना अगर हम लोग बात करें आर्कटिक काउंसिल तो उसके बारे में भी देख लेते क्योंकि ये आर्कटिक काउंसिल भी उसके पास में है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है. देयर आर 8 आर्कटिक स्टेट्स and it was created via the Ottawa Declaration of 1996. Again the stories start from the fact that आर्कटिक का जो रीजन जो है वो ग्लेशियर से भरा हुआ था बट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अब ये मेल्ट हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग इसके जो रिसोर्सेज है वो बाहर आ रहे हैं. तो मेनी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन दिस. सो यू विल फाइंड आउट जो कंट्री इसमें इंटरेस्टेड है और इसके आजू बाजू में है उन्होंने एक काउंसिल बना दिया दैट केम टू बी कॉल्ड एज ए आर्कटिक काउंसिल. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? There are 8 members. और ये मेंबर कौन है? You have Canada, Denmark, then you have Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and the USA. दोस्तों इसका आप कुछ एक्रोनॉम बनाओ और एक्रोनॉम के थ्रू आप उसको याद रखने की कोशिश करो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि आर्कटिक काउंसिल में स्विट्जरलैंड नहीं है. Now, as far as India is concerned, India is observer since 2013 and सबसे बड़ा न्यूज़ है कि India was recently re-elected as a observer. India member नहीं है, India observer है to the Arctic Council और India पहली बार observer कभी बना था 2013 में. Now, before I am going to end my video, let's solve a few questions. Again, it's a request. Please pause the video and then solve by yourself and then proceed with the lecture. Now the question is, which of the following nation is a Nordic country? Let's solve. Denmark. Yes, Denmark is part of the Nordic. Germany.
No. Germany is not part of the Nordic. France? No. Sweden? Yes. The answer is 1 and 4. Now there is a important concept involved in this question. UPSC ने already पूछा है. फॉर एग्जाम्पल दो टर्म आते हैं, एक होता है नॉर्डिक और दूसरा होता है स्कैंडिनेवियन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करूं तो आपको याद रखना है डीएनएस. डीएनएस में कौन कौन आएगा? डेनमार्क, देन यू हैव नॉर्वे एंड देन यू हैव स्वीडन. ना अगर मैं बात करूं नॉर्डिक कंट्री में कौन आएगा तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर डीएनएस प्लस एफआई. तो डीएनएस ऑलरेडी दे आर द स्कैंडिनेवियन कंट्री, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्री. तो एफआई कौन है? एफआई इज फिनलैंड एंड द आइसलैंड. सो डीएनएस प्लस एफआई इज द नॉर्डिक. और अगर हम इसमें से एफआई माइनस करेंगे सिर्फ डीएनएस, देन दे आर दी स्कैंडिनेवियन कंट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना है. यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा यूएसए, यस. रशिया, यस. स्विट्जरलैंड, यस. What about Switzerland? I already said, याद रखना है Arctic Council, Switzerland is not a member. The answer for this is the 1, 2 and 3. I hope now all of you are clear about USA's interest in the Greenland. For more such video, please like and subscribe our channel. Thank you very much.